ویلکم بیک۔ وزیراعظم شہباز شریف لندن سے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیراعظم خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور پہنچے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج رات لاہور میں قیام کر کے صبح اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم آج ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ہر طرح سے وہ اپنا آفس ہولڈ کر رہے ہیں، یہ سرکاری پروسیس کا حصہ ہے۔ وزیراعظم ملک میں نہیں ہیں، وزیراعظم آ جاتے ہیں تو سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے فائل ورک ہو چکا ہو۔ وزارت دفاع کو وزیراعظم ہاؤس سے کوارڈینیشن کے بعد کام کرنا ہے۔ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا جی، اس میں میرے آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہی از ہولڈنگ دی آفس بائی آل مینس، اور ظاہر ہے یہ سرکاری پروسیس ہوتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر صاحب ملک میں نہیں تھے، وہ آ جاتے ہیں تو سارا کچھ ہو جانا چاہیے، یا ہو سکتا ہے فائل ورک ہو بھی چکا ہو۔ میری یہ وزارت نہیں ہے، یہ وزارت دفاع نے کرنا ہے، وزیر اعظم ہاؤس سے کوارڈینیٹ۔ جعلی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ غلط خبر پھیلائیں اور کوئی پوچھے بھی نہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ریاست کا فیصلہ واضح ہے، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بھی جلد واپس آئیں گے، بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے، ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے، یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا۔ اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں تو ان کو بھی بتا دوں آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں، یہ سمجھ لیں آپ کو آ کے یہیں پہ دینا ہے۔ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملے گی، سارا کچھ ہوگا، وہ ممکن نہیں ہے، اور بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ کا بالکل فیصلہ کلیئر ہے، جو چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ کر رہا ہے، we will not spare them۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ کہتے ہیں جیل ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ اپنی افواج کو بدنام کیا جائے، بھارتی چینل پر بیٹھ کر ملک کے خلاف بات کی جائے، شہداء کی تذکیر کی جائے، سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کیا جائے۔ جیل ملاقات جیل مینول کے مطابق ہوگی، غیر قانونی ڈیمانڈ کبھی پوری نہیں کریں گے۔ کی ملاقات ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ قانونی مشاورت کریں، جو صوبہ آپ کے زیر انتظام ہیں ادھر لا اینڈ آرڈر کے انتظامات کریں۔ جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ فوج کو بڑی گالی کون دے گا اس کو میں دھمکی دوں گا۔ جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی انڈین ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ملک کو بدنام کیا جائے، شہداء کی تصحیح کی جائے، سوشل میڈیا کے اوپر جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو ڈیفیم کیا جائے۔ جیل کی ملاقات کا ایک جیل مینول موجود ہے، غیر قانونی ڈیمانڈ کریں کہ وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ قومی اسمبلی میں بھی خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی گونج۔ اسد قیصر نے کہا گورنر راج لگایا تو حکومت سے محلات سنبھالے نہیں جائیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا گورنر راج ماشاء اللہ نہیں ہے، آئین میں اس کی گنجائش ہے۔ اسد قیصر نے وزراء کو بانی سے نہ ملنے دینا عوام کی توہین قرار دیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کلاشنکوف برداروں کے ساتھ اسلام آباد پر حملہ آئین کی توہین ہے، دھمکیاں دینے سے ایوان فتح نہیں ہوتے۔ صوبے میں ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے۔ اسد قیصر صاحب، گورنر راج جو ہے وہ مارشل لاء کی کوئی شکل نہیں ہے، آئین میں دیا ہے، فریمرز نے دیا ہے۔ منسٹر گور خان بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ حالات ہوتے ہیں تو یہ ایک آئینی عمل ہے۔ چیف منسٹر جو ایک صوبے کا نمائندہ ہے، 3.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اس کو جو رسوا کر کے ایک ایسے سے اس کو آئیڈیالوجی کے سامنے رکھوا رہے ہیں۔ غیر آئینی عمل یہ ہے آپ پولیس کے ڈالے آگے پیچھے لے جا کے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے اوپر ورکر ٹوپیوں والے بٹھا کے سرکاری کلاشن کوفے لہرا کے اسلام آباد میں حملہ کرے، وہ غیر آئینی ہے۔ ایک صوبے کی عوام کی اب تصدیق کر رہے ہیں، حکومت سوچ رہی کسی طور پر صوبے میں گورنر راج کی جو کرنا ہے کرے، پھر اس کی جو پولیٹیکل ریپرکشن ہوگی پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ آپ نے مل بیٹھ کے معاملہ حل کرنے ہیں، طے کرنے ہیں۔ چڑھائیاں کرنے سے، جلوس لے کے آنے سے، دھمکیاں دینے سے ایوان فتح نہیں ہوتے۔ ہمت ہے تو گورنر راج لگا کر دکھائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں ان کے صوبے میں بانی پی ٹی آئی کا راج ہے، کسی اور راج کی ضرورت نہیں۔ پر تو آلریڈی عمران خان کا راج ہے، پھر کس راج کی ضرورت ہے؟ اور کسی گورنر راج سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، اگر ان میں اتنی ہمت ہے تو لگا کر دیکھیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کوئی بدماشی کی تو گورنر راج کے ساتھ نااہلی بھی ہو سکتی ہے، پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ سینیٹر فیصل بابڈا کی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمجھداری کا مظاہرہ کریں، سیاست کریں، وزیر اعظم اور صدر زرداری سے ملاقات کریں، ان کے مطالبات پورے ہو جائیں گے۔
आज डिसाइडेड है प्रोवाइडेड कि केपी सीएम जो है वो एक सेंसिबल मूव करें और पॉलिटिक्स करें और पॉलिटिकल वे निकालें और प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं और प्रेसिडेंट जरदारी के पास जाएं, जो उनकी डिमांड है वो पूरी करें। जैसे ही आपने हाथ में लिया कानून और वो एक दबदबे वाली बदमाशी की, अगर कोई कोताही हुई एफपीएम बदमाशी गुंडागर्दी के जुमरे के अंदर तो डिस्क्वालिफिकेशन भी सामने, गवर्नर राज भी ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, बैन भी ऑप्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन भी ऑप्शन। फील्ड मार्शल का अभी तक सीडीएफ का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ? मैटर इन रूटीन है। प्राइम मिनिस्टर साहब आज आ जाएंगे, लंदन से रवाना हो गए। कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, परसों नहीं परसों आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी। कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। बैरिस्टर गौहर बोले, महमूद अचकज़ई इस वक्त अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। स्पीकर ने कहा, मेरी नज़र में नहीं है। बैरिस्टर गौहर बोले, ऐवानों में झगड़े होते हैं। स्पीकर ने कहा, धावे नहीं बोले जाते, कोई कहे हमला कर देंगे तो हमला करके देख ले। खान अचकज़ई साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है। मेरी नजर में नहीं है। ईमानों में झगड़े होते हैं, धावे नहीं बोले जाते। मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मुखातिब। कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने कभी कोई कसर छोड़ी है? कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने प्रोडक्शन ऑर्डर किए, लॉजेस को सब जेल डिक्लेयर किया, 40 घंटे की जगह 60 घंटे डिबेट करने की दी। आप लोग प्रोटेस्ट करके रोज बाहर चले जाएं तो फिर कैसे काम चलेगा? ईमानों में लोग ये नहीं कहते मैं प्रोसीडिंग चलने नहीं दूंगा। आपके वजीर आला ने एक मरतबा नहीं कहा था मैं टांगे तोड़वा दूंगा, हमने कहा है टांगे तोड़ देंगे। हमने यहाँ हमलावर नहीं होना था तो उस दिन होते जब वोट की बारी आई, जब 26वीं तरमीम आई अदलिया डिवाइड। अवाम की मौत के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। जो तरामीम आपने की है हम उसे सेट असाइड करेंगे। अगर लड़ना होता, लोगों को निकालना होता, हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सफर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं आप रुक जाओ, कभी आपको खाया आ जाए, शर्म आ जाए। कोई कहे कि जी हम पब्लिक ले जाके इस पे हमला करेंगे, वो फिर करके देख ले जो करना है। इस जबान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऑफर की आपके लीडर को, बैठे बात करें। उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात करें, अफगानिस्तान से बात करें, आपसे नहीं बात करेंगे। आप लोग वॉकआउट करके चले जाते हैं, आप मैदान इनके लिए खुला छोड़ देते हैं। कमेटीज में आप नहीं आ रहे, स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग नहीं हो रही। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई। जल्द से जुलूस, रैली और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई। 5 या इससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। दफा 144 का निफाज 3 दिसंबर तक होगा। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम ने बताया, हडियाला जेल में आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन है। जेल के अतराफ बाजार बंद रहेंगे। गोरखपुर और अतराफ में मौजूद निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इलाके में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ताजरों को बाजार बंद रखने की हिदायत की गई है। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। अडियाला रोड पर गाड़ियों की मुकम्मल छानबीन होगी। कराची के इलाके कायदाबाद में एलपीजी भरने के दौरान गाड़ी में आग लगने से 6 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। जख्मियों में एक मर्द, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। कराची का एक और पूल इंतजामी नाअहली ने कुचल डाला। नीपत चुरंगी के करीब 3 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। लाश 15 घंटे बाद मिली। शाह फैसल कॉलोनी का 3 साल का इब्राहिम नीपा पुल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने खुले गटर में गिरा तो एक तरफ माँ रोती पीटती और चीखती चिल्लाती रही तो दूसरी तरफ बाप सरकारी बाबुओं को रिश्वत देने के लिए 15,000 रुपए जमा करता रहा। 15,000 रुपए का डीजल पे डलवाया हमने। इन्होंने बहुत देर कर अपनी मदद आपके तहत काम किया, मशीन अरेंज की, इवन के डीजल तक उस मशीन के अंदर हमने खुद बेयर किया। कोई भी नहीं आया मदद के लिए। गावल हम खुद आगे से लेके आए, उसको पैसे नहीं। अमरीकी साख्ता ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार भी मंगवाया गया, लेकिन किसी को कुछ दिखाई न दिया। वाटर बोर्ड एहलकारों को सीवरेज लाइनों तक का इल्म न था। 12 घंटे के बाद भी जगह का नक्शा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से रेस्क्यू का अमल रोका गया है। रात से मुख्तलिफ वाटर बोर्ड के दायरे जा रहे थे, इनको तो पहले तो ये कि लाइन का ही नहीं पता कहाँ से कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। सरकारी इदारे इब्राहिम को तलाश तो क्या करते, जब इस बदनसीब की लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने निकाल ली तो पुलिस वालों ने उल्टा थप्पड़ मारे। अगर नाले में पड़ा तो मैंने उठा के अंकल को दिया, मेरे को उतार के बोले तो कौन है, मैंने बोला मैंने ढूंढा, मेरे को चमाटे मारे गाड़ी से मेरे को उतार दिया उधर से। हंसता खेलता इब्राहिम वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए गया था। वालिद की उंगली छूटी और फिर जिंदगी इब्राहिम से न सिर्फ रूठी बल्कि माँ बाप को
ऐसा गम दे गई जिसे वो कभी ना भूल सकेंगे। मशीनरी ना देने के इल्ज़ाम की तहकीकात होंगी। ये इंक्वायरी भी कराएंगे कि शहर के बीचों बीच मैनहोल खुला था तो क्यों ढक्कन नहीं लगाया गया। मेयर कराची मुस्तफा वहाब का ऐलान, कहा अहले खाना से ज़्यादा सियासी लोग वाक़े को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। CCTV निकलवा रहा हूँ, अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। टीवी फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। कैसे शहर के बीचों बीच डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी। सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, कार्रवाई हम करेंगे। उनके वालिद साहब का एक स्टेटमेंट सुना कि मशीनरी मांगी तो इदारों ने मदद नहीं की। मैंने MD वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें वाटर बोर्ड के किस मुलाजिम ने ये बात कही थी। कराची में खुले मैनहोल में 3 साल के इब्राहिम के गिरने का वाकया। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी के इंतजामिया के रवैये पर सवाल। कम सिन बच्चे की मौत पर सवाल करना सियासत कैसी? कराची में खुले मैनहोल्स किसकी जिम्मेदारी हैं? कभी गाली, कभी गोली, कभी भत्ता, कभी करंट, कभी बारिश और कभी बिलबोर्ड्स। ये सब ना हो तो खुले मैनहोल्स में बच्चे गिरकर मर जाते हैं। हम सवाल उठाएं तो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि एजेंडे के तहत प्रोग्राम किया। लाहौर से मवाजना करें तो चिराग पा हो जाते हैं। क्या अमेरिका से मवाजना करें? सालों से जिस जमात की हुकूमत है उसी से पूछेंगे। मेयर कराची को सवाल, तकरीर और इश्तियाल अंगेज बयान लगते हैं। वो जवाब में कहते हैं इस तरह की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से मसाइल हल नहीं कर पाते। जो मैंने पाकिस्तान से मुताल्लिक जो पहली खबर सुनी वो एक माँ की ऐसी चीखने चिल्लाने दिल दहला देने वाली आवाज़ थी। मैंने अभी तक पूरा वो देखा ही नहीं। हो कटर के ढक्कन नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। और हमने ये खबर सुनी कि एक और माँ चीख रही है कि अल्लाह नहीं, अल्लाह ये मत कहो, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। ये कराची में पहला वाक़या नहीं था, ये कराची में आखिरी वाक़या भी नहीं है। शहर के मेयर हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, इनसे आज एक सहाफ़ी ने सवाल किया, बहुत गुस्सा आया मुर्तज़ा वहाब साहब। तो अगर सियासत हो रही है, भाई सियासत नहीं हो रही है, बच्चे मर रहे हैं यार। अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ की हुकूमत बेहिस है तो आप गलत समझ रहे हैं। बेहिस नहीं है, इनको गुस्सा ही नहीं आता। नहीं गुस्सा आता है, इनको एहसास होता नहीं, एहसास होता है। कब होता है? अभी प्रोग्राम कर रहा हूँ ना मैं, आप देखिए गुस्सा आएगा। मेयर साहब को लगा, मेयर साहब को अभी भी इस पर गुस्सा आया कि यार ये आप, उनको लगा ये जो गुफ्तगू है, उनको लगा है इश्तिहाल अंगेज़ी। देखिए क्या कहा। माँ की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता? आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? अगर आप सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप कहते हैं कि किसी हुक्मरान के कान में ये बात गई तो मैं हुक्मरान का हिस्सा हूँ, हुकूमत का हिस्सा हूँ और ख़ुद आया हूँ। हाँ, सवाल करो यार, तकरीर नहीं करो भाई। सवाल करो, बस हुदूद में रहो, अपनी औकात में रहो, अपनी सवाल करो, तकरीर नहीं करो। ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। समझ आई आपको कराची के शहरियों? आ गई आपको समझ में? ये मसला है आप लोगों का। ये जो इस तरह की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू होती है ना, इसलिए मसला हल नहीं होता। बच्चे इसलिए गटर में गिर के मरते हैं, बारिश में इसमें से लोग मर जाते हैं, करंट लगने से इसमें से बच्चे मर जाते हैं, मोबाइल छीनने से, क्योंकि आप लोगों को इश्तियाल अंगेजी आप लोगों को शर्म ही नहीं आती। ये जब बात हो रही तब तो शायद तदफीन भी नहीं भी होगी। आप कह रहे हैं कि इस तरह की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से मसले हल नहीं होते। सड़क इस वक्त भी ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि लोगों ने इश्तियाल क्रिएट करने की कोशिश की है। ठीक है ना, सड़क बंद कर दी, इश्तिहार क्रिएट करने की कोशिश की है ना, सड़क बंद है। ये मैं नहीं कह रहा कि सड़क बंद करना चाहिए या नहीं करना, मैं इसको एडवोकेट नहीं कर रहा। शायद कोई ऑपोजिशन के दोस्त तो इस तरह सोच सकते हैं। मैं बहैसियत मेयर के इस बात से इत्तफाक नहीं करता। मैं तो चाहता तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता, आता नहीं। देखिए सर, चाहते तो कैंसिल कर देते प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं आते फिर क्या करते आप? मैं चाहता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता, मैं ना आता मैं, लेकिन मैं आया हूँ। इस पर हम सब शुक्रगुजार हैं कि आपने इस काबिल तो समझा कि मुंह तो लगाया, बात तो किया आपने। और आप चाहते तो वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देते, फिर क्या होता? आगे सुनिए। सर मैं ज़ाती तौर पर जिम्मेदार हूँ, मैं तो ब्लेम गेम पर जाता नहीं हूँ। चाहूँगा तो ब्लेम गेम पे जा सकता हूँ। जिम्मेदार है अब मुझसे। देखें, बात ये, या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफत कर लें। नहीं, मेरी बात सुनें। देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीक़ेकार। देखें, सहाफत के नाम पे सियासी एजेंडे को प्लीज़ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक जुमला कह दूं, जो सहाफत के नाम पे सियासत कर रहा हो उस पर लानत। ठीक, अगला जुमला भी कह दूं, जिसकी ये जिम्मेदारी है और वो पूरा नहीं कर रहा, उस पर भी फिर यही 4 हर्फ भेज दूं मैं, अगर आप बुरा ना माने तो। नीपा चौरंगी पर खुले गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले इब्राहिम की गली में भी
कई गटरों के ढक्कन गायब हैं। अहल खाना कहते हैं हमारा बच्चा तो चला गया, खुदारा बाकी बच्चों को बचा लें। गमजदा लवाहिकीन ने मेयर कराची के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। इब्राहिम को नमाज जनाजे के बाद आहूं और सिस्कियों में सुपर्द खाक कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन में तरमीम के बाद खानेवाल में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 48 घंटों में 550 मुकदमा दर्ज, 25 लाख रुपए के जुर्माने और 2300 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद की गईं। रिपोर्ट करेंगे साजिद खान। नए ट्रैफिक कवानीन के तहत शहरियों में कानून पसंदी को फरोग देने के लिए ट्रैफिक पुलिस और जिला पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियां और चेकिंग पॉइंट्स कायम कर दिए हैं, जहां मोटरसाइकिल सवारों, गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सख्त जांच की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क जिला भर में कायम नाकाबंदियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की हिदायत पे जो ट्रैफिक वायलेशन के खिलाफ कैंपेन शुरू की गई है। ये सारे जो क्राइम हैं, ये जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं, इन सब के खिलाफ एक्शन बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़ और 100% मेरिट पे शुरू किया गया खानेवाल में। और पिछले 2 दिनों में 48 घंटों में इसमें 550 के करीब FIR दर्ज हो चुकी हैं, 2.5 मिलियन से ज़्यादा का जुर्माना हो चुका है और 2300 के करीब गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सारे बंद हुई। नए कवानीन का मकसद शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। DPO इस्माइल खाड़क ने शहरियों से कवानीन की पाबंदी की अपील की है। इसमें मैं ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा अपने शहरियों को, खानेवाल के भाइयों को, बेटियों को कि हमसे ताउन करें, हम आपके लिए हैं। और मैं अश्योर कराता हूँ कि इसमें 100% बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक कार्रवाई हो रही है। शहरियों ने इंतजामिया के इस इकदाम को खुशाइंद करार देते हुए मुतालबा किया है कि ट्रैफिक कवानीन पर बिला तफरीक अमल दरामद जारी रखा जाए ताकि सड़कें महफूज रह सकें। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। चमन पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती के रास्ते अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी है। वापस जाने वालों को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खाने के अलावा गर्म कपड़े भी दिए जा रहे हैं। अख्तर गुलफाम रिपोर्ट करेंगे। चमन पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती के रास्ते अफगान माजरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी है। वापस जाने वाले अफगान माजरीन को खाने के अलावा रोजाना की बुनियाद पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से दीगर सहूलियात दी जा रही है। हजारों अफगान माजरीन को खाना बल्कि इनको दीगर सहूलियात भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ फैसिलिटी हो गया, माजूरों के लिए व्हील चेयर्स हो गए, एम्बुलेंस सर्विस हो गया। अभी सर्दियों में हमने इनके लिए गर्म कपड़े वगैरह के भी बंदोबस्त कर लिए है। डिप्टी कमिश्नर चमन अबीब अहमद बंगलजे का कहना है कि पाक अफगान सरहद पर कशीदगी और अफगान हुकूमत के जारियाना रवैया के बावजूद इंसानी फरीजा बखूबी अदा कर रहे हैं। हमारी तरफ से तो बिल्कुल अच्छाइयाँ हो रही है, बदकिस्मती से उनकी तरफ अभी तक ऐसी अच्छी इकदाम नहीं हुई है। हम यहाँ से इनकी मेहमान नवाजी करके खातर तवाज़ो करके भेज रहे हैं। ज़िला इंतजामिया के साथ समाजी वर्कर्स भी अफगान मुहाजिरीन को खाने और दीगर सहूलियात की फराहमी में पेश है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान इंसानियत, इलाकाई इस्तेहकाम और कमजोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी दरीना वाबस्तगी पर कायम है। कैमरामैन अयातुल्लाह के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, चमन। बरतानवी होम सेक्रेटरी की जानिब से तारकीन वतन के लिए इमिग्रेशन कवानीन में इस्लाहात मनसूबे से बरतानिया में मौजूद 20 लाख तारकीन वतन बराह रास्त मुतासर होने का खदशा है। इन इस्लाहात पर लेबर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट क्या तासुरात रखते हैं, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जाहिद नून ने अफजल खान और यास्मीन कुरैशी से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, बरतानवी होम सेक्रेटरी शबाना महमूद की तरफ से इमिग्रेशन कवानीन में इस्लाहात का प्लान जो है वो गुज़श्ता हफ्ते पेश किया गया, जिसपे अभी काफ़ी ज़्यादा बहस जारी है। इन कवानीन के हवाले से जो लेबर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट है, उन अफजल खान और यास्मीन कुरैशी, उनसे बात करते हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी आए हैं उनको वो कहते हैं कि आप अनदर 10 या 15 ईयर्स में ILR नहीं ले सकते। पार्टी जो है ना इस मसले भी गलत है और मैंने होम सेक्रेटरी को इस मसला रेज भी किया है डायरेक्टली। किसी को लीगल राइट्स होने चाहिए, उनकी रेगुलेशन होने चाहिए। इमिग्रेशन लॉ होते हैं ये फेयर होने चाहिए और मुल्क के मफाद में होने चाहिए, और जब कानून जब बने
तो उस दिन से जो कानून होगा वो आइंदा आने वालों पे लागू होना चाहिए। जब ये लेजिस्लेशन प्रोसेस में जाएंगे हम इसको बकायदा उसमें कॉल भी करेंगे और उस पर एग्जामिन करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे होम सेक्रेटरी को। अफजल खान और यास्मीन कुरैशी की जो तासुरात थे इस बिल के हवाले से वो आपने सुने और उनका ये कहना था कि ये जो कवानीन है कम अज कम उन लोगों पे नहीं लागू होने चाहिए जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है और उनको जो पुराने कवानीन है उनके मुताबिक ही ILR जो है वो देनी चाहिए। जी। कनाडा में एक और सिख रहनुमा को कत्ल कराने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा है कि भारतीय सिफारतकार ने कराए के कातलों की खिदमत हासिल की और खालिस्तान रेफरेंडम के मुंतजिम अंदरजीत को निशाना बनाने की कोशिश की। कत्ल की साजिश से कैनेडियन हुकाम को आगाह कर दिया है। अंदरजीत सिंह को खालिस्तान रेफरेंडम मुहिम के मुंतजिम हैं। गुरपतवंत के मुताबिक भारतीय सफारतकार ने कराए के कातिल को $50,000 की पेशकश की। Tried to hire a hitman, offered $50,000 to assassinate Inderjeet Singh Gosal, a close associate of Shahid Hardeep Singh Nijjar and the organizer of Khalistan referendum in Canada. I'm forced to share this information to preempt and to prevent another assassination on Canadian soil. And I'm very sure through Canadian agencies, Prime Minister Carney's office, Foreign Minister Anita Anand's office and Public Safety Minister's office have this information that Narendra Modi's government is still planning to assassinate pro-Khalistan Sikhs on Canadian soil. I urge all Canadians, hail Dinesh Patnaik, shadow Dinesh Patnaik, follow Dinesh Patnaik from residence to his office in Ottawa, force, push and pressure Dinesh Patnaik to leave Canada before another assassination takes place in Canada. बेल्जियम में पाकिस्तानी निजात कश्मीरी बॉक्सर अब्दुल्ला अहमद की शानदार कामयाबी। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब्दुल्ला अहमद ने मुसलसल तीसरी बार 60 किलोग्राम कैटेगरी का टाइटल और नेशनल चैंपियनशिप बेल्ट अपने नाम की। मोहम्मद नदीम भट्ट की रिपोर्ट। में मुनक्दा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तानी निजात कश्मीरी बॉक्सर अब्दुल्ला अहमद ने तारीख रकम कर दी। शानदार तकनीक, बरक रफ्तारी और बेमिसाल हिम्मत के साथ उन्होंने मुसलसल तीसरी मरतबा 60 किलोग्राम कैटेगरी का टाइटल अपने नाम कर लिया। ये फतह सिर्फ एक कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान और पूरी कम्युनिटी के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। अब्दुल्ला की चैंपियनशिप जीतने पे मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे लिए ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है। मुकाबले के दौरान शायकीन का जोशो खरोश काबिल दीद था। हर ज़रब और हर लम्हे के साथ अब्दुल्ला के हक में फलक शिगाफ नारे गूंजते रहे। मैं तीसरी दफ़ा टाइटल लेके आ गया हूँ, अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हुआ है। और नौजवान को मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। स्पोर्ट्स बहुत बेनिफिट देते हैं, बुरे कामों से दूर रखते हैं। अब्दुल्ला c'est un garçon super discipliné। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरा बेटा आज माशाल्लाह तीसरी दफा चैंपियन बना, बेल्जियन चैंपियन। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैदान सियासत हो या खेल का मैदान, हर जगह पुरजोश नजर आते हैं। नदीम भट्ट, ARY न्यूज़, यूरोपीय दारुल हुकूमत। मुल्तान में शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में ₹2 कमी को नाकाफी करार देकर हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया। राना फारूक की रिपोर्ट। मुल्तान में शहरी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में ₹2 कमी पर नाखुश दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमत में सिर्फ ₹2 कमी अवाम के साथ मजाक है। ₹2 से तो कोई खुश नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है जितना इन्होंने बढ़ाया उस हिसाब से कम भी किया करें। ये तो कोई बात ना हुई ना, ₹2 ये कम कर देते हैं और 10-10 रुपए चढ़ा देते हैं। इससे तो अच्छा था और 2-4 रुपए बढ़ा देते। क्या फायदा है ₹2 का? जब बढ़ाना होता है उस टाइम कोई समझ नहीं आती, जब घटाना होता है तो ₹2 कम करते हैं। कोई फायदा है इसका? इसका तो कोई फायदा नहीं है। शहरियों का कहना है लोग महंगाई से परेशान हैं, पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी की जाए। 10 से 20 रुपए कम हो तो फर्क पड़ता है। मैं ये शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेहरबानी करें कि ये मुल्क गरीबों का है, कम अज कम हमें 25 से 30 रुपए पेट्रोल को कम करना चाहिए। ₹2 तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। कम अज़ कम इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि कम अज़ कम भी ₹50 का जो है ना कमी करनी चाहिए, जिससे अवाम को डायरेक्ट फ़ायदा हो। शहरी कहते हैं हुकूमत को चाहिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी करके शहरियों को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राना फारूक, ARY न्यूज़, मुल्तान। सेंट्रल लंदन में ARY डिजिटल के मीडिया इश्तराक से एक पुरवकार फैशन शो का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद कैंसर के इलाज के लिए रिसर्च को सपोर्ट करना था। रिपोर्ट करेंगे फरीद कुरैशी।
کینسر ریسرچ کے حوالے سے آگاہی پھیلانے اور فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے لندن میں تھنک پنک کینسر بال کے نام سے ایک فیشن شو اور نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں بر صغیر کے معروف ڈیزائنر ترون تاہلیانی کے ملبوسات کی نمائش کی گئی، جبکہ حسن شہریار یاسین اور ماہین کریم سمیت متعدد ڈیزائنرز کی طرف سے عطیہ کیے گئے ملبوسات کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا۔ ایئر وائی ڈیجیٹل کے اشتراک سے ہونے والے شو میں ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے خصوصی شرکت کی۔ پاکستان ہائی کمیشن کی میری وائف کی، ہم سب کی پوری سپورٹ اس پہ موجود ہے، انشاءاللہ اس کو آگے بھی فالو اپ کریں گے۔ منتظم حاجرہ احمد، عدنان انصاری اور دیگر نے شو کا مقصد یوں بیان کیا۔ I lost both parents, which was, I think, a life-changing moment in my life. But this is done in memory of my parents. اس طرح سے ایونٹ آرگنائز کرنا اور سچ اے گڈ کاز فار کینسر اور اتنا بڑا اماؤنٹ جمع کرنا، اور میں آج اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہ کینسر چیریٹی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کینسر ساری دنیا کو اس وقت سراؤنڈ کیے ہوئے ہے، سو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ دیٹ آئی اینڈ دا بینک اینڈ دا حبیب فیملی ہم لوگ بہت زیادہ اس پہ سپورٹ کر۔ اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ ایچ پی ایل بینک یو کے اس میں فور فرنٹ پہ ہے اور اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ فیشن شو کے تمام ورکرز نے بھی مفت خدمات مہیا کی اور اس کی تمام آمدن کینسر ریسرچ کے لیے لگانے کا اعلان کیا گیا۔ فرید قریشی، ایئر وائی نیوز، لندن۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔